न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यो शाश्वतं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतं यं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूतय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतं यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न नेवर नेवर जायते जायते टेक्स बर्थ टेक्स बर्थ म्रियते म्रियते डाइज डाइज वा वा आइदर आइदर कदाचित कदाचित at any time at any time past present or future past present or future na never na I am never
I am this, This. Bhutva, Bhutva, having come into being, having come into being. Into being. Bhavita, Bhavita. Bhavita will come to be, will come to be. Va, Va or, or Na, Na. not, Not. not. Bhuyaha, Bhuyah or is again Or or is is coming again to be, coming to be. coming to be. Ajaha, Ajaha, unborn, unborn. Nityaha, Nityaha, eternal, eternal. Shashvataha, Shashvataha, permanent. permanent. Ayam, I am this, this. Puranaha, Puranaha, the oldest. the oldest. Na, Na, never. never. Hanyate Hanyate is killed. is killed. Hanyamane, Hanyamane, being killed. Being killed. being Sharire, killed. Sharire. Sharire, the body. the body. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. For the soul, For the soul, there is neither birth there is neither birth nor death nor death at any time. at any time. He has not come into being. He has not come come into being. to being. Does not come into being. He has Does not come into being. being. He has not come into being. He has not come into being. Does not come into being. Does Has not come come into being. into being. And will not come into being. And will not come into Come being. into being. He is unborn, He is unborn, eternal, eternal, ever existing, ever existing, and primeval. and primeval. He is not slain He is not slain when the body is slain. when the body is slain. Purport by Srila Prabhupada. Who will read? माताजी can I read? कल तो निर्मिति ने पढ़ा था, कोई और पढ़ो. माताजी मैं पढ़ूं? हाँ. Wow. Qualitatively, Qualitatively, the small atomic fragmental part of the Supreme Spirit is one of supreme. He undergoes no changes like the body. Sometimes the soul is called the steady or kuthastha. Kuthastha. The body is subject of 6 kinds of transformations. It takes its birth from the womb of the mother's body, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles, and at last vanishes into oblivion. The soul, however, does not go through such changes. The soul is not born, but because he takes on a material body, the body takes its birth. The soul does not take birth there, and the soul does not die. Anything which has birth also has death. And because the soul has no birth, therefore he therefore has no past, present, or future. He is eternal, ever existing, and primeval. That is, there is no trace of history of his coming into being. Under the impression of body, we seek the history of birth, etc. Of soul. The soul does not at any time become old as body does. The so-called old man therefore feels himself to be the same spirit as in his childhood or youth. The changes in body do not affect the soul. The soul does not
deteriorate like a tree, nor anything material. The soul has no byproduct either. The byproducts of the body, namely children, are also different individual souls, and owing owing to the body, they appear as children of a particular man. The body develops because of the soul's presence, but the soul has neither offshoots nor change. Therefore, the soul is free from six changes of body. जय। और कौन पढ़ेगा आगे? वेरी गुड, वेरी गुड। रीबोल। हम एक पैराग्राफ ये वाला डिस्कस करते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे पर्पॉट, ठीक है? तो ट्रांसलेशन में शिला प्रभुपाद, एक तो हमने ना 1000 टाइम्स थैंक यू बोलना चाहिए प्रभुपाद को, उन्होंने हमें एक एक वर्ड का मीनिंग बताया है। सब बोलेंगे शिला प्रभुपाद की जय। कितना मुश्किल है देखो, इतने सारे वर्ड्स का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बताना, हर वर्ड का ट्रांसलेशन। प्रभुपाद न नेवर भी नहीं छोड़ते, वाह या आइदर नहीं छोड़ते, वाह और नहीं छोड़ते। इस वाह का मतलब आइदर है, इस वाह का मतलब और है, कभी न का मतलब नॉट होता है, कभी नेवर होता है। तो प्रभुपाद ने हमें ना एक भी वर्ड के लिए कभी ऐसे ये नहीं किया है, मतलब वी डोंट हैव टू गो नियर एनीबडी, एनी संस्कृत स्कॉलर, किसी के पास भी हमें जाकर ऐसे ये जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू फाइंड आउट। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो हमें ना किसी के पास भी जाके पता करने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद ने हमें सब कुछ थाली में परोस के दिया है। इसलिए हम लोग ना दिन में 1000 बार भी प्रभुपाद को थैंक यू बोलेंगे ना तो भी कम है। हमें इतना अच्छे से भगवद गीता कोई समझा ही नहीं सकता था कलयुग में, जिस तरीके से प्रभुपाद साक्षात हर पेज पे आके हमें बताते हैं। ट्रांसलेशन में यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं अभी इस श्लोक में, न जायते म्रियते वा कदाचिन। इसका मतलब क्या है? जो ये होता है, आत्मा होती है, वो कभी मरती नहीं है, इट नेवर डाइज, ठीक है? उसका कभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कभी उसकी मृत्यु कभी हुई नहीं होती, ना उसका जन्म हुआ होता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूय। नायम मतलब कभी भी नहीं, भूतवा मतलब भूतकाल में, भविता मतलब भविष्य काल में, और भूया मतलब कभी भी नहीं, डज नॉट मतलब कभी भी नहीं। एक तो ना भूतकाल में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, और वैसे भी जनरली कभी भी आत्मा क्या करती है? मृत्यु नहीं होती आत्मा की। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूय। किसी भी टाइम, आप किसी भी टाइम जोन में ले लो, सत्ययुग ले लो, कलयुग ले लो, किसी भी कल्पों तक पीछे चले जाओ, nobody has ever died, nobody is ever born, and nobody has ever stopped to exist। ये लोग हमेशा से ही थे। तो कह रहे हैं कि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, नित्य हमेशा से ही आत्मा इटर्नल थी, नित्य थी। मतलब कृष्ण जैसे पहले से थे, है और रहेंगे, वैसे ही हम लोग भी पहले से ही थे। ऐसा कभी टाइम नहीं था जहाँ पे हम नहीं थे। अजो नित्य शाश्वत मतलब हम परमानेंट है। सबसे गुड न्यूज तो ये है कि हम सब लोग परमानेंट है, तो हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है कोई किसी से दूर चला जाएगा, किसी से बात नहीं होगी, या फिर हम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, या फिर लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे सारे डर से बाहर आ जाना है, क्योंकि हम सब लोग परमानेंट है। गुड न्यूज तो यही है कि हम सब परमानेंट है। हम कुछ ऐसे मरने नहीं वाले हैं, बॉडी मर जाएगी लेकिन हम लोग नहीं मरेंगे। तो शाश्वतोयम पुराणो, ओल्डेस्ट, हम सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। हम लोगों का उम्र जो बॉडी की उम्र है ना, उससे कोई लेना देना ही नहीं है हमारे। कोई 10 साल का बच्चा 17 साल के बच्चे के जितना मच्योर हो सकता है, और कोई 17 साल का बच्चा 9 साल के बच्चे जितना मच्योर हो सकता है। तो एक आत्मा की उम्र जो होती है ना, उसकी बॉडी के हिसाब से गिनी नहीं जा सकती। किसी किसी बच्चों को कहा जाता है ये बच्चे ओल्ड सोल है। ओल्ड सोल मतलब क्या? पुरानी आत्माएं हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा मच्योर दिखते हैं, बहुत ज्यादा मच्योर बातें करते हैं। तो ये बच्चों के शरीर का जो उम्र होती है, उससे आत्मा की उम्र गिनी नहीं जा सकती। आत्मा की उम्र तो आत्मा बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा ओल्ड है। इसलिए कोई अगर बहुत बचपना करता है और कहता है ना
मुझे भगवत गीता आती नहीं पढ़नी, या फिर मैं भगवत गीता पढ़ ही नहीं सकता, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आती, तो समझ जाना चाहिए कि ये इतनी पुरानी आत्मा है, इतनी ओल्ड आत्मा है, और फिर भी ऐसे एक्सक्यूज देती है। मानो जैसे गंगा का पानी सूख जाएगा तो मैं क्रॉस करूंगा गंगा, तो ऐसे वाले एक्सक्यूज देते हैं। तो हम क्या है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। पहले तो अपने आप को जानो, मैंने आपको पहले भी बताया था भगवत गीता का मेन क्या है उद्देश्य, अपने आप को जानना। और हम कौन है, हम कौन है, हम आत्मा है या नहीं है, यस है माता ना? जी। और हमारी मृत्यु नहीं होती, न जायते म्रियते व कदाचिन। कदाचिन मतलब कभी भी नहीं होती, ना पास्ट में होती है, हुई है, ना फ्यूचर में होगी, और कभी होती ही नहीं है। कदाचिन, नेवर एवर, नायम भूतवा भविता वा न भूय। किसी भी टाइम पीरियड में हमारी मृत्यु नहीं होती, ना हमारा जन्म होता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। अपने आप को जानो, हम कौन है, हम शाश्वत है। हम कौन है, शाश्वत है। शाश्वत का मतलब क्या है, हम लोग कौन है, परमानेंट है। परमानेंट। वी आर परमानेंट, इजंट दैट अ गुड न्यूज? मजा आता है ना सुनकर, हम परमानेंट है, हमने तो कभी मरना ही नहीं है। अननेसेसरी हम टेंशन लेते रहते हैं। तो आप 70 ईयर्स के लोगों को पूछोगे, 80 ईयर्स के लोगों को पूछोगे, हॉस्पिटल में जाके पूछोगे ना, वहां पे लोग मृत्यु के बारे में सोचते सोचते ही अपनी जान गिव अप कर रहे होते हैं। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, उनके उनके बहुत खास है, उनकी फैमिली में कोई, उनको हार्ट अटैक आया था, तो बाईपास सर्जरी के लिए लेके जा रहे थे, और वो बहुत डरे हुए थे उनके माताजी। तो ऐसे होता है कि बाईपास सर्जरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी मन में सोच रखा है कि अभी तो मेरी मृत्यु निश्चित है। एक्चुअली पता नहीं है कि बाईपास सर्जरी के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन वो सर्जरी का जो विचार है, उससे उनके मन में इतना डर पैदा हो चुका है कि उनको ऐसे लग रहा है जैसे सर्जरी के बाद वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो फिर ऐसे होता है, जब हम भगवत गीता से अपने आप को जान लेते हैं ना, जानना अपने आप को बहुत जरूरी है। फिर चाहे ऐसी हम 70 साल के हो जाए, 75 साल के हो जाए, 100 साल के हो जाए, और जो लेके चलो किसी भी सर्जरी के लिए, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि वी आर परमानेंट, हमें कभी डर नहीं लगेगा। शरीर खोने का तो कभी भी डर नहीं लगेगा, हमें ऐसा नहीं लगेगा मैं मर रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल में लिया जा रहा है, मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं, मेरे अंदर पाइप्स डाल रहे हैं, या मेरे साथ कुछ ऑपरेशन होने वाला है। ऐसा वाला कोई डर ही नहीं बचेगा शरीर में, जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे। पहले तो एक्सेप्टेंस के लिए भगवद गीता बहुत अच्छी है, अपने आप को जानने के लिए बहुत अच्छी है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, मैं बता रही हूँ, ये लाइन में अगर आपने मास्टरी की ना, अगर ये लाइन आपने एक हफ्ता हर रोज रिपीट की ना अपने लिए, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, आपको स्टेज पे कोई खड़ा करेगा 10 लाख लोगों के सामने और बोलेगा बात करो इस टॉपिक पे, आपको उससे भी डर नहीं लगेगा। क्लास की बात तो छोड़ ही दो, कॉलेज की बात तो छोड़ ही दो, 200-300 लोगों के सामने, 60 लोगों के सामने जिनको डर लगता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ये याद रहा ना, हमें इतना पता चलेगा आई एम परमानेंट। अब मैं किसी भी स्थिति का सामना जो है वो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा हिम्मत से किसी भी चीज का सामना कर सकता हूँ। अगर हमें ये कृष्णा के ये वर्ड्स है, ये कृष्णा के मुख से निकल रहा है, इसलिए इसमें इतनी शक्ति है। अगर ऐसे किसी ने पढ़ा ना, जैसे ऐसे किसी को लगा ना कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और भगवत गीता में ये टेक्स्ट है, भगवत गीता एक बुक है और बुक के अंदर का ये एक टेक्स्ट है, बस काला काले अक्षर से कुछ लिखा हुआ, ये वाली फीलिंग से पढ़ा तो कभी अपने आप को आत्मा की नजर से देख नहीं पाओगे। अगर ये देखा ना कि कृष्ण बता रहे हैं अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, कृष्ण बता रहे हैं, इसका मतलब मैं सच में शाश्वत हूँ। ओहो, मैं तो बहुत पुराना हूँ, मैं क्यों अननेसेसरी छोटे छोटे एक्सक्यूजेस दे के, बहाना दे के अपने आप को छोटा समझता हूँ। घर में चाहे सबसे छोटे हो फिर भी छोटे नहीं समझना, घर में सबसे बड़े हो तो भी बड़े नहीं समझना, अपने आप को पुराना समझो। पुराणो, वी आर द ओल्डेस्ट, पुराना समझो। और फिर जो आपके अंदर जो एक मैच्योरिटी आएगी ना भगवत गीता को समझने की, अपने आप को आत्मा को समझने की, वो मैच्योरिटी आपको बाकी लोगों में कभी नहीं दिखेगी। आपको 40 साल के लोग दिख जाएंगे, 50 साल के लोग दिख जाएंगे, हर छोटी चीज को लेके रोते हैं, हर छोटी चीज को लेके आसपास के लोगों के बारे में कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं होता ये परमानेंट है, इनको लगता है ये टेम्पररी है।
अभी 10 साल में मर जाएंगे, अभी 15 साल में मर जाएंगे, अभी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो इनका तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, 100 लोग इनको बुरा भला बोलेंगे, बच्चा सेटल नहीं हुआ तो लोग ऐसे बात करेंगे, बेटी की शादी नहीं हुई तो लोग ऐसे बात करेंगे। डरे डरे रहते हैं, क्यों? इनको लगता है लाइफ तो टेम्पररी है, अभी खत्म हो जाएगी। अरे आप तो खत्म होते ही नहीं हो, डर क्यों रहे हो? वी आर परमानेंट। अंडरस्टैंडिंग? एवरीबडी इज विथ मी? यस और नो? यस माता जी। कृष्ण जो बोल के गए हैं ना, इसको हल्के में मत लेना, इसको अपने दिल से लगा लेना इस सेंटेंस को। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। जब भी डर लगेगा ना, याद रखना कि मैं तो शाश्वत हूँ और मैं सबसे पुराना हूँ। मतलब सामने वाले जितने भी लोग, आपके सामने 10 लाख लोग खड़े हैं, चाहे 20 लाख लोग खड़े हैं, आपको लगेगा मैं तो सबसे पुराना हूँ, ये भी सबसे पुराने हैं, इनको पता नहीं है मैं तो सबसे पुराना हूँ। आपको किसी भी चीज का, किसी से भी डर कभी लगेगा नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं कि ये जो ओल्डेस्ट है, हम इतने ओल्ड है कि हमें कोई मार नहीं सकता, ना हम किसी को मार सकते हैं। सिर्फ शरीर मर सकता है और शरीर को मारा जा सकता है, हमें कोई नहीं मार सकता। हमें कोई टच करके देख ले, हमें कोई बुरा बोल के देख ले, आप तो हमारे शरीर को बुरा बोल रहे हो, हमें तो बोल ही नहीं रहे हो। आप हमारे शरीर को हानि कर रहे हो, आप तो हमें हानि नहीं कर सकते। आप हाथ में सुई लेके ढूंढो, हमारे हम आत्मा है, सुई से भी प्रिक नहीं कर पाओगे, हम इतने छोटे से माइन्यूट साइज में हैं। ठीक है। सो पर्पॉट में शिला प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, क्वालिटेटिवली छोटे छोटे एट फ्रैगमेंटल पार्ट्स ऑफ सुप्रीम स्पिरिट इज वन विद द सुप्रीम। तो प्रभुपाद सीधे हमें बता रहे हैं, बहुत साइंटिफिकली बता रहे हैं, कहते हैं क्वालिटेटिवली मतलब क्वालिटी के हिसाब से। कृष्णा के पास, कृष्णा को स्माइल करना पसंद है, जीवात्माओं को स्माइल करना पसंद है। कृष्णा को खाना खाना पसंद है, जीवात्माओं को खाना खाना पसंद है। जीवात्मा को, कृष्णा को डांस करना पसंद है तो जीवात्माओं को डांस करना भी पसंद होता है। फिर कृष्णा को दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, जीवात्माओं को भी खेलना बहुत पसंद है। फिर कृष्णा को श्रृंगार करना पसंद है तो जीवात्माओं को श्रृंगार करना बहुत पसंद आता है। कृष्णा को अपनी माँ से बहुत प्यार है तो जीवात्माओं को दूसरे शरीर में आई हुई एक आत्मा जो माँ के शरीर में आई है उससे भी बहुत प्यार हो जाता है। तो हमारे अंदर कृष्णा की क्वालिटीज है। प्रभुपाद कह रहे, क्वालिटेटिवली द स्मॉल एटॉमिक फ्रैगमेंटल पार्ट ऑफ सुप्रीम स्पिरिट इज वन विद द सुप्रीम। क्वालिटी के हिसाब से हम कृष्णा जैसे ही है, भले कृष्णा जितने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन कृष्णा जैसी छोटी छोटी क्वालिटीज हमारे अंदर है। ये फर्स्ट लाइन समझ में आई, हम कैसे वन है कृष्णा के साथ? माता जी, हाँ, लेकिन माता जी जो बुरे गुण होते हैं हम में या फिर किसी और में, तो वैसे गुण तो कृष्णा में होते हैं, सारे तो वो कहाँ सारे से आते कृष्णा हैं? से आते हैं। कृष्णा कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे निकलता है। सारे गुण, जितने भी गुण है, बस फर्क इतना है, कृष्णा किलिंग करते हैं ना तो शिशुपाल की करते हैं, अधर्मी लोगों की, और जीवात्मा किल करता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता। कभी कभी डाकू बनकर इनोसेंट लोगों की किलिंग कर देता है, मांसाहारी बन के लिविंग एंटिटीज, इनोसेंट लिविंग एंटिटीज की किलिंग कर देता है। तो आप महान से महान गुना पकड़ लो, वो तो कृष्णा ऑलरेडी ही इज डूइंग दैट, बट ही इज यूजिंग इट इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, एंड जीवात्माएं मिसअंडरस्टैंड करके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। ठीक है। तो हम क्वालिटेटिवली कृष्णा के जैसे ही है, लेकिन हमारे अंदर कम कम प्रमाण में गुण है, और कृष्णा के अंदर इनफाइनाइट लेवल पे। जैसे हमारे यहाँ पे भौतिक जगत में स्वर्ग लोक की अप्सराएं, सबसे सुंदर कौन है? उर्वशी। अब उर्वशी जितनी सुंदर भी 1% ही सुंदर होगी, कृष्णा की सुंदरता अनलिमिटेड होगी। अगर 1 यूनिट ब्यूटी अगर उर्वशी के पास है तो इनफाइनाइट यूनिट्स ब्यूटी कृष्णा के पास है। वैसे सबसे अगर रिच इंद्र देवता को माना जाए, कुबेर को माना जाए, तो इनके पास 1 यूनिट रिचनेस होगी तो कृष्णा के पास अनलिमिटेड रिचनेस होगी। वैसे ही बुरी क्वालिटी के बारे में भी आप बताओ। आज अगर कोई गुंडा किसी को मारने जाता है तो वो किसी निहत्थे को मार सकता है, लेकिन कृष्णा एट ए टाइम खड़े खड़े 64 करोड़ आर्मी को सिर्फ देख के मार सकते हैं, उनको हाथ में वेपन उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो क्वालिटेटिवली हमारे पास कृष्ण की क्वालिटीज है, क्वांटिटेटिवली हम कृष्ण जितने केपेबल नहीं है। तो क्वालिटेटिवली हम कृष्णा जैसे वन है, ये समझो। वैष्णवों को अगर ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व समझ में नहीं आया तो अपने आप को वैष्णव कहना बंद ही कर देना। ठीक है। अगर हमें ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व समझ में नहीं आता
तो खुशी से अपने आप को मायावादी समझ लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वैष्णवों को समझ में आती है, ये मायावादियों को समझ आ ही नहीं सकती, वो समझना चाहते भी नहीं। अंडरस्टूड? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग हम क्वालिटेटिवली वन कैसे है कृष्णा के साथ? हाँ यस माता जी। हाँ, दिस आई एम टेकिंग दिस वेरी सीरियसली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, जल्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, भेद भी है और अभेद भी है, हमारे और कृष्णा में फर्क भी है और फर्क नहीं भी है, ये समझो। क्वालिटेटिवली सारे गुण कृष्णा के हमारे अंदर है, कुछ कुछ तो बहुत ही कम प्रमाण में होंगे। हमारे अंदर भी किलिंग मेंटालिटी है, हम गैस जलाते हैं, हम झाड़ू मारते हैं, हम पोछा मारते हैं, पोछे में फिनाइल डाल देते हैं, कितने कीटाणु मार देते हैं, तो किलिंग तो हमारे अंदर भी है। बट गृहस्थों को ये सारी किलिंग माफ है। जब आप कृष्णा को भोग लगाते हो और खाते हो, तो आपके गैस जो ऑन किया होता है, उसका, उससे जितने बैक्टीरियाज मरे होते हैं, उसका पाप नहीं लगता। आपने सब्जी जो सब्जी तो चलो, सब्जी जो खींच के लाई होती है, सब्जी में भी प्राणवायु होता है, लेकिन वो खाने का भी हमें पाप नहीं लगता। फिनाइल डाल के पोछा मारते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मरते हैं, तब पाप नहीं लगता। फिर पानी यूज करते हो कपड़े धोने के लिए, वो पानी में भी केमिकल जाता है, बहुत सारी चीजें जाती है, उससे भी बहुत सारी जीवात्माएं बाथरूम में मर रही होती है। तो पानी से, अग्नि से, पोछे से, धूल मिट्टी आप झाड़ते हो घर में, तो बहुत सारे कॉकरोचेस, ये वो सारे स्पाइडर्स चले जाते हैं, उनका परिवार उजड़ जाता है, तो भी हमें पाप नहीं लगता, क्योंकि हम भोग लगा के खाते हैं कृष्णा को, और कृष्णा की सर्विस में हम घर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम, हमारे अंदर भी कृष्ण के अंदर जो गुण है, एक्सट्रीम बुरा गुण तो किलिंग के ऊपर क्या ही गुण हो सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीम बुरा गुण जो समझा जाता है, सो कॉल्ड बुरा गुण, वो कृष्ण के अंदर भी है, बस कृष्ण अधर्मी लोगों को मारता है, और हमारे हाथ से भी इनोसेंट किलिंग होती रहती है हमेशा। एंड स्टिल वी आर फॉरगिवन बाय कृष्णा इफ वी जस्ट ऑफर फूड टू कृष्णा, if we just keep a deity of Krishna at home and we serve the supreme personality of Godhead at home, हमारे घर को मंदिर बनाने से हमें सारे पापों से मुक्ति मिलती है, एंड कृष्णा डज दैट। आप समझ में आ रहा है हम क्वालिटेटिवली वन कैसे है कृष्णा की तरह? कृष्णा बड़े बड़े असुरों को मार सकते हैं, नरसिम्हा भगवान बन के कृष्णा ने मिलियंस एंड मिलियंस असुरों को मार डाला था। हमारे यहाँ पे किसी के बस की बात ही नहीं है, अमेरिका की आर्मी लाओ, इंडिया की आर्मी लाओ, सबको इकट्ठे लाओ, तो भी हम एक असुर को ना मार पाए। ऐसे असुरों को नरसिम्हा भगवान ने कीड़े मकोड़ों की तरह फाड़ के साइड में फेंक दिया था। मिलियंस एंड मिलियंस वर टोन अपार्ट बाय मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हैंड्स ऑफ नरसिम्हा भगवान। तो इतने ज्यादा हैंड्स थे, इतने ज्यादा असुर थे, इतनी बड़ी आर्मी थी हिरण्यकश्यपु की, सारी अकेले हैंडल करी। है कोई हमारे अंदर ऐसा? लेकिन क्वालिटी तो है, हम भी मिलियंस एंड मिलियंस एंड्स को एट अ टाइम मार सकते हैं। हमारे सामने खड़े करो 10,000 पहाड़ चींटियों के, इंसान के पास शक्ति है, वो आग लगा देगा, सारी चींटियां मर जाएंगी। तो हमारे अंदर भी वैसी ही शक्ति है जो कृष्णा के पास है, बस क्वांटिटी में हमारे पास बहुत कम है, और कृष्णा के पास भी क्वांटिटी में अनलिमिटेड है। इसलिए हम लोग कृष्णा के जैसे ही है, बट कृष्णा के जितने केपेबल नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, आई बात समझ में? यस माता जी। वेरी गुड। सो ही अंडरगोज नो चेंजेस लाइक द बॉडी। आत्मा जो होती है वो बॉडी की तरह चेंज नहीं होती, हम लोग कभी चेंज नहीं होते। सबसे अच्छी बात तो ये है, वंस कृष्णा सर्वेंट ऑलवेज कृष्णा सर्वेंट, वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी। अब आप चाहे जो कर लो, कृष्णा के डिवोटी हम एक बार बन गए ना, हम चाहे भी तो हम यूटर्न नहीं ले सकते, कितना भी चाहो। वी कैनॉट गो टू ब्रह्म ज्योति, वी कैनॉट गो टू नर्क, वी कैनॉट गो टू स्वर्ग। वी, हमारी फाइनल जो डेस्टिनेशन होगी ना, वो गोलोक और वैकुंठ धाम ही होगी। भले इस जन्म में ना हो, भले अगले 84 लाख जन्मों में ना हो, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी। कहीं पे भी जाएगा ना, वो हरि नाम लेगा ही लेगा, वो हरि के भक्तों के संग में आएगा ही आएगा, हरि के भक्तों के संग में वो भगवान के गुणगान गाएगा, भगवान के रूप के गुणगान गाएगा, लीलाओं के गुणगान गाएगा, और कनेक्टेड रहेगा डिवोटी कृष्णा के साथ। नो वंडर छोटे छोटे बेबीज जितने भी जन्मते हैं वैष्णवों के घर पे, वो जन्मते ही हरि बोल करके हाथ ऊपर करते हैं। पहला शब्द अगर बोलना शुरू करते हैं कैसे वैसे, तो हरि हरि करके बोलना शुरू करते हैं। ये आत्मा
पहले से ही करके आती है, वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी, क्योंकि हमारा शरीर बदलाव से जाता है, हम नहीं बदलते कभी, हम ऐसे ही रहेंगे, भक्ति रहेंगे। अगर अभी भक्ति आ गई हृदय में, हम हमेशा भक्त रहेंगे। सो समटाइम्स द सोल इज कॉल्ड स्टेडी और कुटस्थः। द बॉडी इज सब्जेक्ट टू 6 काइंड्स। ये याद रखना, बॉडी में 6 प्रकार के बदलाव आते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि बॉडी इतने ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं जाती, बॉडी सिर्फ बचपन होता है, एडोलेसेंस होता है, एडल्टहुड होता है, ओल्ड एज होता है। तो काफी सारे लोगों को लगता है सिर्फ 4 स्टेजेस होते हैं, लेकिन नहीं, हमारी बॉडी 6 माता जी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं अभी आ रही है, पहले ब्लैंक हो चुकी थी, कुछ नहीं आ रही। जैसे कहाँ तक सुना था? माता जी क्या था वो? कहाँ तक सुना था? माता जी की बॉडी में 6 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ तो हाँ बॉडी, तो वही बोला था मैंने, बॉडी में ना 6 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पहले तो इट टेक्स बर्थ फ्रॉम वूम्ब ऑफ द मदर। माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद जो न्यूबॉर्न बेबी का शरीर होता है वो फॉर्म होता है। फिर वैसे थोड़ी देर रहता है, मतलब 3 महीने तक, 6 महीने तक वैसे ही रहता है। जैसे हॉरिजॉन्टल बच्चा है, गोदी में ही हॉरिजॉन्टल, ऐसे लेटा हुआ ही लंबा होता रहता है, लेटा हुआ लंबा होता है। उसको बैठने में 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं। तो ग्रोज वाली जो अवस्था होती है उसकी, बैठने लग जाता है, क्रॉल करने लग जाता है, चलने लग जाता है। फिर चलने लग जाने के बाद फिर वो दौड़ने लग जाता है, तो इसको ग्रोज वाली अवस्था कही जाती है। उसके बाद प्रोड्यूसेस सम इफेक्ट्स, मतलब बच्चे हो जाते हैं उसको बड़े होने के बाद। ग्रेजुअली ड्विंडल्स, मतलब बुढ़ापा आ जाता है। और एट लास्ट वैनिशेस इनटू ऑब्लिवियन, मतलब जल के राख हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी ये 6 स्टेजेस से जाती है, सबको याद रहेगी 6 स्टेजेस। 6 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अपने डायरी में नोट बनाओगे तो ऊपर लिखना वूम्ब, बर्थ फ्रॉम मदर्स बॉडी, नीचे एरो निकालना, उसके नीचे लिखना रिमेन सेम फॉर सम टाइम, नीचे लिखना ग्रोज, नीचे एरो निकाल के फिर से लिखना प्रोड्यूसेस चिल्ड्रन, फिर एरो निकाल के लिखना ड्विंडल्स, ब्रैकेट में ओल्ड एज लिखना, नीचे एरो निकाल के फिर लिखना वैनिशेस, मतलब एशेस। वैनिशेस में ही एशेस है, ठीक है। सो वैनिशेस मतलब ऐश बन जाती है, राख बन जाती है बॉडी की। सो द सोल हाउएवर डज नॉट गो थ्रू चेंज। हम कितने लकी है कि हमारा बदलाव नहीं होता। ये शरीर तो अपना ड्रामा करता रहेगा, लेकिन हम कभी भी ऐसे बदलाव से जाते नहीं। तो सोल इज नॉट बॉर्न, हमारा कभी भी जन्म नहीं हुआ है। जो अभी भी जन्म हुआ है, ऐसा कभी नहीं था कि हमारी परमानेंट माता यही थी, परमानेंट पिताजी यही थे, या फिर परमानेंट कोई भी आपके रिश्तेदार, भाई बहन है, माँ है, पापा है, परमानेंटली वो कभी थे ही नहीं परमानेंट। हमारा कभी जन्म हुआ ही नहीं है, हम लोग हमेशा से ही थे, है और रहेंगे। शरीर बस आया है हमारे पास ये नया। सो बिकॉज ही टेक्स ऑन द मटीरियल बॉडी, हमें लगता है कि हमारा जन्म हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक ये जो होते हैं ना पपेट शोज होते हैं, पपेट में हाथ डाल के पपेट्स को हिलाते हो, तो क्या पपेट का जन्म होता है? हाथ का जन्म होता है बार बार। एक पपेट निकालो, दूसरा डालो, दूसरा पपेट निकालो हाथ में से, तीसरा डालो, हाथ तो वही रहेगा ना, बाहर का पपेट बदल रहा है। आ रही है बात समझ में? तो अभी पपेट को क्या लगेगा कि अरे उसका जन्म हुआ, नया जन्म हुआ। नहीं, जन्म नहीं हुआ, आत्मा तो वही है। सो हम लोग कभी जन्म नहीं लेते, हमारी बॉडी जन्म लेती है, हम नहीं जन्म लेते कभी। द सोल डज नॉट टेक बर्थ एनीवेयर एंड द सोल डज नॉट डाई ऑल्सो। हम लोग मरते भी नहीं है, इसलिए कभी डरना नहीं, किसी भी चीज से नहीं डरना। अगर आपको स्टेज पे जाने से कभी डर लगता है ना, सोचना हम कभी मरते ही नहीं, तो स्टेज में जाने से क्या डरना। अगर आपको कभी रोड क्रॉस करने से डर लगता है, लेफ्ट राइट देखना, लेकिन ये हमेशा ये याद रखना कि हम मरते ही नहीं, तो डरना किसी चीज से नहीं है। कोई स्कूल में आके बुली करता है तो भी नहीं डरना, हम कभी मरते ही नहीं, तो डरना किससे है। ऐसे करके आप अगर याद रखोगे ना, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, तो आप दुनिया से डरना बंद कर दोगे। मैं बता रही हूँ, इतना पावरफुल श्लोक है, इतना ज्यादा पावरफुल है। जिसने भी भगवत गीता पढ़ी है ना, और जिसके अंदर भगवत गीता सीरियसली पूरे रोम रोम में जाके सेटल हो चुकी है ना, वो इंसान हमेशा के लिए डर से मुक्त हो चुका है। सो एनीथिंग विच हैज बर्थ ऑल्सो हैज डेथ। कोई भी चीज को बर्थ होता है तो डेथ होगी होगी। आपके आसपास देखो, लकड़ी का फर्नीचर होगा,
फर्श होगी, फ्लोर होगी, वॉल्स होंगे, सीलिंग होगी। आपके आसपास आपकी आंखों से जो भी दिख रहा है ना, उसका जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु होगी। ऐसी कोई भी चीज आपके आसपास आपको दिखेगी नहीं जिसकी डेथ नहीं होती। आपके आसपास मेटल होगा ना, उसकी भी डेथ डिटरमाइंड है, वो मेटल भी खत्म होना है एक दिन, उसको गंज चढ़ जाना है। लकड़ी भी खड़े खड़े उसके अंदर दीमक लग के लकड़ी खराब हो जानी है। दीवारों में भी सिपेज आके, दीवारें भी सिलवटें आके, उसमें सिलवन आके वो खत्म हो जानी है दीवारें। सीलिंग्स भी खराब हो जानी है। और अगर आपको टीवी दिख रहा है, आपका आसपास का इलेक्ट्रिक गैजेट्स दिख रहे हैं, वो तो आपको पता ही है खराब हो जाते हैं, 10 साल भी नहीं टिकते। जिसका भी बर्थ होता है उसका डेथ होता है। आपकी नजर अभी भगवत गीता विजन बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए आपकी नजर? भगवत गीता विजन। भगवत गीता विजन कैसे? जब भी स्कूल जाते हो, आसपास देखते हो, आपको दिखना चाहिए हर चीज बनी है, हर चीज खत्म होनी है, हर चीज बनी है, हर चीज खत्म होनी है। रोड के देखोगे, एनीथिंग दैट हैज बर्थ हैज डेथ। रोड को भी गड्ढे आ जाते हैं, रोड की भी डेथ होनी है एक दिन। उसकी मरम्मत करती रहती है सरकार, इसलिए। आसपास ब्रिजेस दिखोगे, दुकानें दिखेंगी, फ्रूट्स दिखेंगे, वेजिटेबल्स दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा। एवरीथिंग दैट हैज बर्थ ऑल्सो हैज डेथ। समझ में आ रहा है सबको? दिस इज हाउ यू सी एवरीथिंग थ्रू द आईज ऑफ भगवत गीता। अंडरस्टूड? यस और नो? यस। है क्या इंटरनेट ये बच्चों को सुनाई दे रहा है? यस माता जी। वेरी गुड, हाँ यस माता जी। वेरी गुड। एंड बिकॉज द सोल हैज नो बर्थ, ही हैज नो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आत्मा का जन्म ही नहीं होता, वो हमेशा से ही है, तो उसका भूतकाल कैसे हो सकता है? उसका प्रेजेंट टेंस भी नहीं हो सकता, उसका फ्यूचर टेंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा से ही है। हम हमेशा से ही है, ऐसे समझना है। ये समझना ही नहीं है कि मैं कभी पिछले जन्म में राजा हुआ करता था, उसके पिछले जन्म में मैं वॉरियर हुआ करता था, उसके पिछले जन्म में मैं डांसर हुआ करता था, उसके पिछले जन्म में मैं सिंगर हुआ करता था। ये कोई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की गेम है ही नहीं। हम हमेशा से ही है, हमेशा से ही रहेंगे। हमारा कोई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता नहीं है। गोलोक में भी पास्ट नहीं होता, फ्यूचर नहीं होता, कोई टाइम जोन नहीं होता वहां पे, किसी भी टाइम में डिवाइडेड नहीं है। किसी भी चीज की ना बंदिशें नहीं है गोलोक में और वैकुंठ में। ये बंदिश है ना पास्ट में। आज भी अगर आप पीछे सोचो, आप पिछले साल के एग्जाम दी हुई, याद करो पिछले साल आपने एग्जाम दी थी। एग्जाम हॉल सबको याद आ रहा है अपना? पिछले साल के एग्जाम्स याद आ रहे हैं दिए हुए? हाँ माता जी। तो अभी वो याद आता है तो ऐसे लगता है ना जैसे सपना है। ऐसे लगता है ना सपना देख रहे हो। अभी है क्या? अभी हो रहा है अभी सामने आपके वो? नहीं माता जी। तो सोचते हो तो कहीं ना कहीं पीछे दिखाई देता होगा ना। पीछे हाँ लेफ्ट को दिखाई देता होगा, राइट को दिखाई देता होगा, सामने दिखाई देता होगा, ऊपर दिखाई देता होगा, नीचे दिखाई देता होगा। कहीं तो वो दिखाई देता है। दिया या नहीं दिया? किस हाँ डायरेक्शन में दिखाई दिया? लेफ्ट में दिखाई दिया या राइट में दिखाई दिया? सामने बीच दिखाई दिया। अब मैं बीच में। बीच में दिखाई दिया। चलो हर एक को अलग अलग दिशा में दिखाई देगा। अभी बताओ, अगर आप भविष्य के बारे में सोचते हो, मान के चलो आप सब लोग कॉलेज जा रहे हो, उस दिन के बारे में सोचो, कहाँ दिखाई देता है आपको? राइट में, माता जी लेफ्ट में, सामने, पीछे, ऊपर या नीचे? माता जी सामने। और माता जी भूतकाल कहाँ दिखाई दिया? माता जी सामने। पास्ट भी सामने और फ्यूचर भी सामने। मैम माता जी सामने। सामने। तो अभी समझ में आ रहा है वो हो रहा है क्या? एट प्रेजेंट हो रहा है क्या? नहीं माता जी। नहीं हो रहा ना। तो आत्मा कभी ये होती ही नहीं है। आत्मा का ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है। आत्मा तो हमेशा कहाँ होती है? अभी तो हम आप और मैं बात कर रहे हैं ना। होती है नहीं होती? हाँ यहाँ माता पे जी। हमारी डिस्कशन चल रही है, तो आत्मा है कहाँ? ओरिजिन अभी कहाँ है? अभी भी प्रेजेंट में है ना आत्मा। हाँ माता जी। वो गई क्या? पास्ट में गई? अभी फ्यूचर में गई? नहीं माता। सोचा तो गई, माइंड से देखा ना। बट आत्मा शरीर में अटकी हुई कहाँ पे है? आपका शरीर तो इधर ही है ना, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने। बट आप माइंड से पास्ट में गए, पिछले साल की एग्जाम देखी,
और माइंड से आप फ्यूचर में गए, आपने क्या देखा, कॉलेज जा रहे हो, राइट? yes, आत्मा हिली तो नहीं ना जगह से, आत्मा तो इधर ही थी ना। हाँ, दिस इज हाउ द सोल हैज नो बर्थ, नो डेथ। द सोल इज ऑलवेज हियर ओनली। द सोल गोज नोवेयर। सोल का कोई पास्ट नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता। सोल जहां होती है ना वहीं पे होती है। हम लोग यहीं पे है। अभी के अभी अगर हमारी मृत्यु हुई ना, इस शरीर के ऊपर हमने फ्लोट हो जाना है, नीचे देखना है, हमारा शरीर ऐसे ही ड्विंडल होके गिर गया होगा, दैट्स इट। लेकिन हम यहीं पे रहेंगे। हम चाहे भी तो पिछले साल की एग्जाम देने नहीं जा सकते, चाहे भी तो कॉलेज में, कॉलेज का जो आपने देख लिया वहां पे नहीं जा सकते। आत्मा इधर ही घूमेगी अगले 5 मिनट तक। आ रही है समझ में बात? हाँ माता जी। आत्मा का जन्म हो रहा है क्या कहीं पे भी? आत्मा का जन्म हो रहा है? नहीं माता जी। नहीं ना, एज सिंपल। तो आत्मा इटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग है और प्रिमेबल है, हमेशा से ही नित्य है। अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो। नित्य है, हमेशा से ही होती है। ऐसे ही है, अगर कोई कहता है पिछले जन्म में आप फ्रूट बहुत बड़े फ्रूट्स के ये थे, मर्चेंट थे, फ्रूट मर्चेंट थे, तो भी फायदा क्या? आत्मा तो यहाँ पे है ना, अभी इस शरीर में हो ना, तो फायदा क्या है? देर इज नो, यू कैनॉट गो टू द पास्ट, यू कैनॉट गो टू द फ्यूचर, एट दिस मोमेंट यू कैन बी ओनली हियर। So the soul has no past and no future. The soul is always there and it will always be there. So there is no trace in history of soul coming into being. तो हिस्ट्री में भी कहीं लिखा नहीं है आज तक किसी भी शास्त्रों में कि आत्मा का जन्म हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा। अंडर द इम्प्रेशन ऑफ बॉडी वी सीक द हिस्ट्री ऑफ बर्थ। बॉडी की वजह से हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाके बर्थ सर्टिफिकेट लेके आते हैं। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना आपका, वो बॉडी का बर्थ सर्टिफिकेट है, आत्मा का नहीं है। आत्मा का बर्थ सर्टिफिकेट मिल ही नहीं सकता। आज तक किसी प्रेयर में नारद मुनि ने नहीं बोला, यमराज जी ने नहीं बोला, मैत्रेय मुनि ने, विदुर ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि मैं जब जन्मा था। ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है। वो कभी कहते ही नहीं है मैं जब जन्मा था ऐसे, क्योंकि जन्म होता ही नहीं है। आत्मा ऑलवेज इज देयर। द सोल डज नॉट एट एनी टाइम बिकम ओल्ड। आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं है। द सो कॉल्ड ओल्ड मैन फील्स हिमसेल्फ टू बी एज यंग एज चाइल्डहुड और यूथ। तो ये सीक्रेट है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको कभी ऐसे लगता ही नहीं वो बूढ़े हैं। आपने ये कहावत सुनी है, कुछ बूढ़े लोग कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, आपने सुना है कुछ लोग कहते हैं ऐसे, एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, कहते हैं। हाँ जी बच्चों, सुना है ऐसा कोई कहता है? नहीं हाँ माता जी। माता जी। कहते हैं ना लोग। इसका मतलब क्या है? उनका शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन इनको मानना नहीं है ये बूढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो बूढ़ी हुई ही नहीं। शरीर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन ये बुढ़ापे में भी अच्छे से अपने बचपन के किस्से सुनाते हैं, अपने नौकरी के किस्से सुनाते हैं, अपने पोता पोतियों को बताते हैं हम ऐसे खेलते थे, हम वैसे खेलते थे, हम ऐसी पढ़ाई करते थे, हम वैसी पढ़ाई करते थे, हम स्कूल में ये करते थे, वो करते थे। ऐसे करके बड़े फ्रेशली बता पाते हैं। 60-70 ईयर का होगी आत्मा, उस शरीर, फिर भी आत्मा इतने चेयरफुली सारी चीजें बता पाती है। तो ये चेयरफुलनेस आता कहाँ से? क्योंकि आत्मा का एज तो बढ़ ही नहीं रहा। तो आत्मा अपने आप को हमेशा अपने नाते पोती के सामने भी अपने आप को बच्चा बनने में उसको मुश्किल नहीं होती, क्योंकि जल्दी से उसको बचपन की चीजें सारी याद आके वो शेयर कर पाता है। तो उस वक्त के लिए वो आत्मा बच्चा, अपने आप को बच्चा समझती है। फिर अब उस आत्मा अगर 70 साल की होगी, 80 साल की होगी, और उसके सामने उसका 40 साल का बेटा आ गया, तो उस आत्मा को अपने शरीर के लीलाएं याद आएंगी। 40 साल की क्या जब था वो शरीर, तो वो बताएगा देखो 40 में, मैं जब 40 का था तो मैंने ये किया था, वो किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था। सो आत्मा का तो कभी उम्र बढ़ी नहीं रही है, इसलिए आत्मा किसी भी एज में फिट हो जाती है। बड़ी होने के बाद भी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझती। तो सो कॉल्ड ओल्ड मैन, प्रभुपाद कह रहे हैं सो कॉल्ड ओल्ड मैन जो होते हैं, सो कॉल्ड मतलब एक्चुअल में बूढ़े नहीं होती, आत्मा बूढ़ी होती ही नहीं है, लेकिन इनको बूढ़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर बूढ़ा है।
The so-called old man feels himself to be same spirit as in childhood or youth. आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन घर में दादी दादा होंगे ना, आप उनके साथ बैठोगे ना तो आपको दिखेगा कि वो कहेंगे अरे आज रसमलाई खाने का मन कर रहा है, आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, चलो 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 पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। तो उनका मन करता है, कैसे कर रहा है, बचपन में खाया होगा, नॉस्टैल्जिक फील होता होगा उनको, जब छोटे से बड़े हो रहे थे, पानी पूरी खाई होगी, तो 80 साल में भी उनको मन करेगा पानी पूरी खाने की। तो आत्मा की तो उम्र बड़ी ही नहीं ना, आत्मा तो अपने आप को अभी भी यंग समझती है। फिर उनको ये डाइजेस्ट होने में बड़ा मुश्किल होता है कि अरे खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन क्या करे, शुगर है, रसमलाई खाने का मन कर रहा है लेकिन शुगर हो चुकी है, नहीं खा सकते। मुझे तो बहुत फेवरेट है, मेरा मैंगो जूस तो बहुत फेवरेट है, मैं नहीं खा सकता, लेकिन शरीर को डायबिटीज हो चुका है। मतलब आत्मा की तो उम्र बड़ी ही नहीं, इट इज जस्ट दैट द बॉडी हैज ग्रोन ओल्ड। आत्मा की तो इच्छा है बचपन की जो थी वैसी ही इच्छा है, बचपन की एज इट इज वैसी इच्छा है, इसलिए आत्मा सो कॉल्ड ओल्ड आ गया। प्रभुपाद कहते थे जब बूढ़े लोग भक्ति को एक्सेप्ट करने में, अमेरिका में खासकर, जब बूढ़े लोग सिर्फ कुत्ते पालते थे और गोल्फ खेलने जाते थे, अपने कुत्तों को चेन से बांध कर वहां पे ट्री को बांध देते थे या ग्रिल को और गोल्फ खेलते थे, प्रभुपाद कहते थे ये देखो सो कॉल्ड ओल्ड मैन अपने आप को रिटायर्ड समझ रहे, इनको पता ही नहीं है कि ये लोग आत्मा है और किसी भी वक्त भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये लोग अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और इनको लगता है कि हमारी जिंदगी 15 साल बची है, अब 15 साल बचे हैं, 10 साल बचे हैं, 5 साल बचे हैं, वो एंजॉय करके निकालना है हमने, ऐसे करके, इसलिए ये सब लोग सिर्फ एंजॉय करते रहते हैं। तो फिर प्रभुपाद देखते थे कि अमेरिका में बूढ़े लोगों के क्लब्स भी होते थे, क्लब्स में वो शाम को जाएंगे, ड्रिंक करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे और फिर धीरे 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 अपने घर पे आएंगे। तो ऐसे करके प्रभुपाद देखते थे, कहते थे कि इनकी कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि ये लोग अपने आप को बूढ़ा समझ रहे हैं। इनका शरीर बूढ़ा हुआ है, आत्मा तो अभी भी नित्य है। नित्य मतलब आत्मा की तो एजिंग हुई ही नहीं है, आत्मा तो बूढ़ी हुई ही नहीं है, ये लोग अभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस ले सकते हैं, बट इनका माइंड में बैठ चुका है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए इनको अभी भगवत गीता सुननी नहीं है, ना हरि नाम लेना है। इन्होंने पूरी लाइफ जो किया है वही करना है, पूरी लाइफ इन्होंने एक ही सपना देखा था, रिटायरमेंट के बाद ऐसे एंजॉय करेंगे, वैसे एंजॉय करने। तो ये लोग भक्ति फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए प्रभुपाद कहते सो कॉल्ड ओल्ड मैन। प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आता था जो भौतिकवादी ओल्ड मैन होते थे ना उनका, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतने बड़े होने के बाद भी मैच्योरिटी ना आना। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ना इनको ज्ञान है कि ये लोग शाश्वत है, ना इनको ज्ञान है ये लोग बहुत पुराने हैं, ये बॉडी के चक्कर में अपने आप को बूढ़ा समझ रहे हैं, लेकिन ये बूढ़े है ही नहीं, ये सिर्फ पुराने हैं, बूढ़े नहीं है। तो ये कहने का मतलब है प्रभुपाद का। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम विच प्लेस प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग अस? समझ आ रही है बात? यस माता ठीक है, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, जय छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।